What a thunderclap these words were to me. Oh, the wretches! That was what they had put up at the town hall. My last French lesson. Why, I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop there then. Oh, how sorry I was not for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the shark. My books that had seemed such a nuisance a while, so heavy to carry, my grammar and my history of the sands were old friends now that I couldn't give up. And MML too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. Poor man, it was a honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understand why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and showing their respect for the country that was theirs no more. तो फ्रांस कहता है कि इन शब्दों का कितना वज्रपात मुझ पर हुआ और मैंने समझा कि अरे वो दुरात्मा या दुष्ट लोग उन्होंने ये बात टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित की थी। मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन क्यों मैंने मुश्किल से अभी तक लिखना भी नहीं सीखा। मैं अब आगे कभी नहीं सीख सकता हूँ। मुझे निश्चित रूप से सीखना स्थगित करना पड़ेगा। ओह, मैं कितना दुख महसूस कर रहा था कि मैं अपने पाठों को नहीं सीख पाया और बजाय इसके मैं पक्षियों के अंडे ढूंढने या तलाशने के लिए गया। उसको मैंने अधिक प्राथमिकता दी और सार नदी पर नौकायन करने या फिसलने के लिए गया। मेरी पुस्तकें जो मुझे इतनी अप्रिय लगती थी कुछ समय पूर्व, जो जिन्हें लेकर जाना मुझे बोझ लगता था, मेरी ग्रामर की पुस्तक और मेरी इतिहास की महापुरुषों या संतों की पुस्तक, वे सब अब पुराने मित्र की तरह लग रही थी जिन्हें मैं त्याग नहीं सकता था। और एमएमएल भी उन्हें उनके चले जाने का विचार कि मैं कभी उनसे फिर दोबारा नहीं मिल पाऊँगा ने मुझे उनके भयावह डंडे और उनके सनकी स्वभाव के बारे में बिल्कुल भुला दिया। मुझे लगा कि बेचारा व्यक्ति, यह उनका इस अंतिम पाठ के प्रति सम्मान व्यक्त करना है कि उन्होंने आज सुंदर संडे क्लोथ्स पहने हुए हैं। और अब मैं समझ सका कि क्यों वृद्ध लोग गांव के कक्षा कक्ष के पीछे बैठे हुए थे। यह इसलिए शायद कि वे भी खेद प्रकट करना चाहते थे कि वे अब अपने स्कूल में आगे अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं जा सकेंगे। और यह उनका अपने अध्यापक के वफादारी पूर्ण 40 वर्षों तक की गई सेवा और उनके प्रति सम्मान को प्रदर्शित करना था और अपने देश के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना था, जो अब उनका नहीं रह गया था। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle, although very loud and clear and without our mistake? But I got mixed up on the first verse and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. I heard MML say to me, I won't scold you, little Franz.
you must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time. I will learn it tomorrow. And now you see where we have come out. Ah, that's the great trouble with Elsa's. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you how it is. You pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language. But you are not the worst, poor little France. We have all a great deal to reproach ourselves with. The hard word meanings from this are like this. Mounted means sat on or occupied. Thunderclap means sudden terrible event or pieces of news, startling and unexpected. Wretches means base or mean persons. Put up means displayed. Nuisance means unpleasant. Stop there then means postpone to learn. Cranky means eccentric. Seeking means searching or looking for. Recite means tell or chant. Sliding means slipping or gliding. Puts off means postpone. Pretend means falsely claim or show. Or Saar means a territory in West Germany in the Saar River Valley. फ्रांस कहता है कि जब मैं इस सब के बारे में सोच रहा था तो मैंने अपने नाम को पुकारे जाते हुए सुना। यह मेरे सुनाने की बारी थी मैं समझ रहा था कि मैं किसी प्रकार से सक्षम नहीं हो पाऊंगा उन भयावह पार्टिसिपल के नियमों को बताने के लिए बिल्कुल स्पष्ट और ऊंचे स्वर में बिना कोई गलती किए हुए, लेकिन मैंने पहले शब्दों में ही मिश्रण कर दिया और वहीं रुक गया। अपनी डेस्क को पकड़े हुए मेरा हृदय धड़क रहा था और मैं ऊपर देख पाने का साहस नहीं कर सका। मैंने सुना कि एमएमएल ने मुझसे कहा कि मैं लिटिल फ्रांस, छोटे फ्रांस, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। तुम निश्चित रूप से बुरा महसूस कर रहे हो। देखो यह कैसे हो गया। हम स्वयं में सोचते रहे कि हम अपना काम टालते रहते हैं। हम सोचते रहे कि वाह मेरे पास पर्याप्त समय है, मैं कल सीख लूँगा। और अब देखो हम कहाँ और किस स्थिति में आ गए हैं। वो भयावह समस्या एल्सास के साथ है जो अपने कार्यों को कल पर स्थगित कर देती है या टाल देती है। अब उन लोगों को देखो वहाँ जिन्हें अधिकार है यह कहने का कि यह कैसे है, तुम फ्रांसीसी होने का ढोंग रचते हो और तुम अभी अपनी भाषा को ठीक ढंग से बोल और लिख नहीं पाते हो। लेकिन बेचारे छोटे फ्रांस, यह तुम्हारी स्थिति ही सबसे खराब नहीं है। हम सब इस बहुत बड़ी परेशानी के जिम्मेदार हैं और अपने आप को तिरस्कृत करते हैं और अपने कार्यों के प्रति निराशा प्रकट करते हैं कि हमने अपनी भाषा को महत्व नहीं दिया। नाइस मीटिंग टू यू द नेक्स्ट डे। हैव ए गुड डे। थैंक यू।